بلٹن کا آغاز کر سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بجلی چوری کے خلاف مہم بھی بے سود۔ لیسکو سسٹم سے 35 ارب کی بجلی غائب ہو گئی۔ بجلی چوری اور بوسیدہ ترسیلی نظام سے اربوں کا نقصان ہوا۔ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم سے 1 ارب یونٹس غائب ہوئے۔ نیپرا نے غائب ہونے والی بجلی کی رپورٹ جاری کر دی۔ بجلی چوری کے خلاف مہم بھی بے سود۔ لیسکو سسٹم سے 35 ارب کی بجلی غائب ہو گئی۔ بجلی چوری اور بوسیدہ ترسیلی نظام سے اربوں کا نقصان۔ نیپرا نے غائب ہونے والی بجلی کی رپورٹ جاری کر دی۔ نیپرا رپورٹ کے مطابق لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کو ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن لائن لاسز کی مد میں خسارہ برداشت کرنا پڑا۔ لیسکو میں بجلی چوری اور بوسیدہ ترسیلی نظام سے اربوں روپے کی بجلی غائب ہوئی۔ نیپرا نے 1 سال کے دوران سسٹم سے غائب ہونے والی بجلی کی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم سے 1 ارب یونٹس غائب ہوئے۔ دوسری جانب شاہدرہ کے علاقے لطیف پاک میں ڈائریکٹ سپلائی سے بجلی چوری کرنے والی B1 انڈسٹری پکڑی گئی۔ لیسکو حکام کے مطابق کارروائی کے وقت 12 کلو واٹ لوڈ پر انجیکشن مولڈنگ مشین چلائی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے بجلی چوری میں استعمال ہونے والی 4 کور کیبل موقع سے اتار لی گئی۔ بجلی چوری میں ملوث افراد آغاز کر دیا گیا۔ مقدمات میں ناقص تفتیش کی وجوہات سامنے آ گئیں۔ پولیس کے لیے ایک تفتیش کا اوسطاً 303 روپے بجٹ، سزائیں نہ ہونے کی وجہ سے فنڈز سہولیات کا فقدان قرار۔ پچھلے سال 11,27,000 مقدمات کی کاسٹ آف انویسٹیگیشن 34 کروڑ 20 لاکھ دی گئی۔ میں ناقص تفتیش، سزائیں نہ ہونے کی وجہ فنڈز، سہولیات کا فقدان۔ گزشتہ سال پولیس کو ایک مقدمے کی تفتیش کے لیے اوسطاً 303 روپے دیے گئے۔ 11,27,000 مقدمات کی کاسٹ آف انویسٹیگیشن 34 کروڑ 20 لاکھ دی گئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق نمایاں مقدمات میں تفتیشی کو بروقت رقم فراہم کی جاتی ہے۔ نمایاں مقدمات کے علاوہ دیگر مدعیان تفتیش کا خرچہ اٹھاتے ہیں۔ SOPs کے مطابق قتل اغوا کیسز میں 1.5 لاکھ کی کاسٹ مختص ہو گئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق گزشتہ سال 4200 سے زائد کیسز کے لیے 63 کروڑ درکار تھے۔ زنا، زیادتی، بدفعلی کیسز میں 1 لاکھ کاسٹ انویسٹیگیشن مختص کر دیے گئے۔ زنا، زیادتی، بدفعلی کیسز 9600 کیسز میں 96 کروڑ درکار تھے۔ پولیس ذرائع کے مطابق دوران ڈکیتی زخمی کے کیسز میں 75,000 مختص کیے گئے ہیں۔ دوران ڈکیتی زخمی کے 8500 کیسز میں 64 کروڑ درکار تھے۔ متفرق 10,33,000 مقدمات میں 14 ارب کی کاسٹ آف انویسٹیگیشن درکار تھی۔ مقدمات کی تفتیش کے آغاز پر کاسٹ آف انویسٹیگیشن فراہم کی جانا چاہیے۔ بات کریں گے بلدیاتی نظام کی تو پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام، لوکل گورنمنٹس کے اختیارات کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ٹیکس، فیس، جرمانوں کی منظوری اور وصولی لوکل گورنمنٹس کے دائرے اختیار میں ہوگی۔ پانی، سیوریج، صفائی، سڑکیں، ٹریفک، کھیل، پارکس اور پبلک ٹرانسپورٹ کا بھی کنٹرول ہوگا۔ پنجاب میں مجوزہ نئے بلدیاتی نظام کے تحت ٹاؤن کارپوریشن، میونسپل کمیٹی اور تحصیل کونسل کے اختیارات و ذمہ داریوں کی تفصیلی فہرست سامنے آ گئی ہے۔ شہری اور بلدیاتی معاملات میں فیصلہ سازی اور عمل درآمد کے دائرہ کار کو واضح طور پر اپر ٹیئر لوکل گورنمنٹس کے حوالے کرنے کی سمت پیش رفت کی گئی ہے۔ دستاویز کے مطابق اپر ٹیئر ادارے نہ صرف بلدیاتی قوانین اور بائی لاز نافذ کریں گے بلکہ ٹیکس، فیس، ریٹس، ٹولز، جرمانے، چارجز کی منظوری دیں گے اور وصولی بھی کریں گے۔ ترقیاتی اسکیموں کی تیاری، تکمیل، بجٹ سازی، مالیاتی گوشواروں کی تیاری، آڈٹ، خلاف ورزیوں پر نوٹس اور قانونی کارروائی کا اختیار بھی شامل ہے۔ ریکارڈ ڈیٹا بیس کی تشکیل اور عوامی رسائی جیسے اختیارات بھی استعمال کر سکیں گے۔ یونین کونسلز کو کوئی اضافی ذمہ داری، وسائل اور فنڈز کی فراہمی کے بغیر نہیں دی جائے گی۔ محکمہ خزانہ کا ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز کا اجرا، لیڈی ولنگٹن اسپتال کے لیے 1 ارب روپے جاری کیے گئے۔ سیاحت کے فروغ کے لیے 7 کروڑ 80 لاکھ روپے دے دیے گئے۔ بجٹ آن لائن کر دیا گیا۔ ادھر محکمہ بلدیات نے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے مزید 15 ارب روپے مانگ لیے۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے لیڈی ولنگٹن اسپتال کی عمارت کو مکمل کرنے کے لیے 1 ارب روپے جاری کر دیے۔ سیاحت کے فروغ کے لیے 7 کروڑ 80 لاکھ روپے کے فنڈز کا اجرا کر دیا گیا۔ KDCP کے پٹریانہ چیئر لفٹ کی اپ گریڈیشن کے لیے 2.5 کروڑ روپے دے دیے گئے۔ محکمہ خزانہ نے بجٹ آن لائن کر دیا۔ محکمہ بلدیات کی جانب سے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے مزید 15 ارب روپے مانگ لیے گئے۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت صوبے کے 46 شہروں میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ محکمہ بلدیات نے یہ ریکوزیشن محکمہ PND بورڈ کو ارسال کر دی۔ PND بورڈ پہلے مرحلے میں 10 ارب جاری کر چکا ہے۔ 46 شہروں میں سیوریج اور اسٹریٹ لائٹس کا کام جاری ہے، جس کے لیے مزید بجٹ مانگا گیا ہے۔ پنجاب صنعت کاری پروگرام کی ورکنگ مکمل کر لی گئی۔ 100 دنوں میں 100 نئی صنعتوں کے قیام کا ہدف ہے۔ صنعتی ترقی کے لیے نیا فریم ورک تیار کر لیا گیا۔ نئی صنعتوں کے لیے بینک آف پنجاب کے ذریعے 150 ارب تک کی فائنانسنگ ہوگی۔ فی صنعتی یونٹ 2 ارب تک قرض، 10 سالہ مدت، 2 سال کا گریس پیریڈ تجویز کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے 76 ارب سے زائد مارک اپ سبسڈی دینے کی سفارش کی گئی۔ مبارک مہینے کو شروع ہوئے 1 ہفتہ گزر گیا۔ ذخیرہ اندوزوں اور گرا فروشوں کی اجارہ برقرار، سبزیاں، پھل اور چاول مہنگے۔ غفلت تر رمضان بازار چنگ کا عملہ معطل کر دیا گیا، جبکہ بادامی باغ، سنگھپورہ اور کاہنہ منڈی میں چیکنگ اور جرمانے کیے گئے۔
रहमान पुरा में महंगा गोश्त बेचने पर दुकान सील की गई। महंगी अशिया के फरोख्त पर इम्तियाज स्टोर और जलाल सन्स को जुर्माना आयद किया गया। ACCT राय बाबर अली का गुलशरावी बाजार का दौरा। मुबारक महीने को शुरू हुए एक हफ्ता गुजर गया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरां फरोशों की अजारादारी बरकरार है। शहर के ओपन मार्केट में अजनास की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। अजनास की मंडियों में चावल 10 रुपए फी किलो महंगे हो गए। 10 रुपए इजाफे से 350 रुपए वाला चावल 360 और 390 रुपए वाला चावल 400 रुपए फी किलो तक पहुँच गए। प्रीमियम क्वालिटी की पैकिंग वाले चावल 580 से 620 रुपए फी किलो बिक रहे हैं। दुकानदारों ने कहा कि महंगाई ने कम आमदनी वाले तबके की कमर तोड़ कर रख दी है। दूसरी जानिब फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने फूड सप्लाई चेन की कड़ी मॉनिटरिंग शुरू कर दी। इम्तियाज स्टोर को महंगी अशिया फरोख्त करने पर 1,50,000 रुपए जुर्माना किया गया। जलाल सन्स को मुकर्रर कीमतों की खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। दौरान कार्रवाई जायद नर्ख वसूली पर 2 स्टॉल्स बंद कर दिए गए। 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। ओवर चार्जिंग पर मजीद 2 स्टॉल्स के लाइसेंस भी मनसूख कर दिए गए। गफलत बरतने पर रमजान बाजार चूंग के अमले को फौरी मुअत्तल कर दिया गया। बादामी बाग मंडी में 70 होलसेलर्स की चेकिंग खिलाफ वर्जी पर 17,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। कहना काछा मंडी में 2 FIR दर्ज करके 10,000 रुपए जुर्माना किया गया। सिंहपुरा मंडी में भी 15,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। लाहौर भर में 113 होलसेलर्स के रिकॉर्ड निर्खों की जांच पड़ताल की गई। अब यहाँ पर बात करेंगे फजाई आलूदगी के हवाले से। शहर में सूरज की हल्की किरणों और खुशगवार हवा ने मौसम को मुअतदिल बनाए रखा। खुशगवार मौसम के बावजूद फजाई आलूदगी की सूरत हाल तशवीशनाक रही। लाहौर दुनिया भर में फजाई आलूदगी के एतबार से पहले नंबर पर रहा। मजमूई AQI 348 रिकॉर्ड किया गया। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा रही, जबकि हवा में नमी का तनासुब 19% रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। अगले रोज 10% बारिश की पेशनगोई की गई थी। खुशगवार मौसम के बावजूद फिजाई आलूदगी की सूरत हाल संगीन रही। शहर दुनिया भर में फिजाई आलूदगी के एतबार से पहले नंबर पर रहा। शहर का मजमूई AQI 348 रिकॉर्ड किया गया। बरकी रोड पर AQI 430 तक पहुंच गया, जबकि CPR ऑफिस में 276 रिकॉर्ड किया गया। बेदिया में 208 और गुलबर्ग 3 में 192 AQI रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन सेहत ने शहरियों को गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की। अफिया रिजवान, सिटी 42। पेचीदा बीमारी वाले अफराद हज नहीं कर सकेंगे। एडवांस कैंसर रेडियोथेरेपी करवाने वाले मरीज हज नहीं कर सकेंगे। दिल के आर्जे, तपेदिक और गुर्दों के मरीजों को भी सफर की इजाजत नहीं होगी। दायमी सांस और फेफड़ों की बीमारियां, शदीद एसाबी अमराज, जिगर के मरीज भी बैन होंगे। हज के दौरान पेचीदा बीमारियों में मुब्तला अफराद के सफर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। एडवांस कैंसर रेडियोथेरेपी से इलाज करवाने वाले मरीज हज सफर नहीं कर सकेंगे। गलत मेडिकल जमा करवाने आजमीन को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वजारत मजहब नूर पाकिस्तान के मुताबिक दिल के आर्जे में मुब्तला गुर्दों की खराबी वालों को हज सफर की इजाजत नहीं होगी। दायमी सांस और फेफड़ों की बीमारियां, शदीद एसाबी अमराज, जिगर के मरीज भी सफर नहीं कर सकेंगे। दूसरी जानिब खवातीन में हमल के आखिरी सेमाही और तिब्दक के मरीज भी हज सफर नहीं कर सकेंगे। वजारती मजहबी अमूर के मुताबिक गलत या जाली मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाने पर हाजी अस्पताल में तिब्बी अखराजात खुद बर्दाश्त करेगा। बरवक्त FIR के अंदराज के लिए सख्त मॉनिटरिंग का आगाज। थानों की बेहतर कारकर्दगी के लिए नई KPIS मुतारिफ। शहरी इत्मीनान को पुलिस कारकर्दगी का मरकजी पैमाना बनाने का फैसला किया गया। तफ्तीशी अफसरान 24 घंटों में मुद्दई से राब्ते के पाबंद। चालान बरवक्त जमा न करवाने और नाकिस तफ्तीश पर जवाबदेही सख्त होगी। शहरी इत्मीनान को पुलिस कारकर्दगी का मरकजी पैमाना बनाने का फैसला कर लिया गया। बदसलूकी की शिकायत पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, हर केस की बाकायदा जांच होगी। इमरजेंसी कॉल्स पर रिस्पांस टाइम की निगरानी, ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तफ्तीशी अफसरान को 24 घंटों में मुद्दई से राब्ते का पाबंद बना दिया गया। पुलिस स्टेशन की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नई KPIS मुतारिफ करा दी गई। बर वक्त FIR के अंदराज को यकीनी बनाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग का आगाज कर दिया गया। जाए वक़ुआ पर फौरी हाजिरी और शवाहिद इकट्ठे करने का अमल लाजमी करार दिया गया है। चालान पर वक्त जमा न कराने और नाकिस तफ्तीश पर जवाबदेही सख्त होगी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी और मसरूका माल की बरामदगी को कारकर्दगी से मशरूत कर दिया गया। SHO की अवामी औकात में मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। थानों में सफाई, विमेन डेस्क और शहरी सहूलियात का बाकायदा ऑडिट होगा। हर माह खुली कचहरी का इनेकाद, अवामी मसाइल बराह रास्त सुने जाएंगे। गैर कानूनी तामीरात, कमर्शियल इमारतों में तब्दीली का स्कैंडल। 225 गैर कानूनी इमारतों को लिस्टें फराहम करने पर सवाल उठ गए। बाबडा टाउन इंतजामिया ने मामले पर सवालिया निशान लगा दिया। शोबा टाउन प्लानिंग अफसरान ने मुबैना तौर पर 225 इमारतें गैर कानूनी बनवाई। घरों को कमर्शियल इमलाक में तब्दील किया गया।
LDA शोभा टाउन प्लानिंग का गैर कानूनी तामीरात और घरों को कमर्शियल इमारतों में तब्दील करने का बड़ा स्कैंडल। वापडा टाउन सोसाइटी इंतजामिया ने 225 गैर कानूनी इमारतों को लिस्टें फराहम करके टाउन प्लानिंग पर सवालिया निशान लगा दिया। दस्तावेजात के मुताबिक LDA शोभा टाउन प्लानिंग अफसरान ने मुबैना तौर पर 225 इमारतें गैर कानूनी बनवाई। घरों को गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल अमलाक में तब्दील किया गया। इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि LDA टाउन प्लानिंग अफसरान को बारहा आगाह किया, लेकिन तामीरात न रुकवाई जा सकी। दस्तावेज के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर मेन रेजिडेंशियल बुलेवर्ड कमर्शियल बुलेवर्ड में तब्दील हो गया। LDA शोभा टाउन प्लानिंग हुकाम ने दुकानें, शोरूम्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स खुलवाकर खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। वापडा टाउन सोसाइटी के रिहायशी और इंतजामिया सरापा एहतजाज है और कोर्ट से रुजू कर रखा है। वापडा टाउन का नक्शा बिगाड़ने वाले अफसरान तरक्कियां पाकर वहीं आला अफसरान तैनात हो चुके हैं। शोभा टाउन प्लानिंग जोन 4 की नाअहली से कमर्शियल तामीरात कम होने की बजाय तेजी से बढ़ने लगी। स्कूलों में सालाना इम्तिहानात सर पर आ गए। लाहौर के सरकारी स्कूल्स के 700 असातिज़ा की ड्यूटियां मुस्तहिक अफराद की तस्दीक पर लगा दी गई। गैर निसाबी ड्यूटियां लगने से स्कूल्स में पढ़ाने वाले असातिज़ा कम पड़ गए। दूसरी जानिब पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के पार्टनर स्कूल्स में क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट लेने का ऐलान कर दिया। स्कूलों में सालाना इम्तिहानात सर पर आ गए। लाहौर के सरकारी स्कूलों के 700 असातिज़ा को गैर निसाबी ड्यूटियों पर तैनात कर दिया गया। गैर निसाबी ड्यूटियों से स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिज़ा कम पड़ गए। असातिज़ा लाहौर के 1200 ब्लॉक्स में मुस्तहिक अफराद की तस्दीक करेंगे। हर ब्लॉक में 10 मुस्तहिक अफराद की तस्दीक की जाना है। वालिदैन का कहना है कि असातिज़ा की गैर निसाबी ड्यूटियों से तलबा तालिबात का तालीमी नुकसान होगा। सदर पंजाब टीचर्स यूनियन काशिफ शहजाद चौधरी का कहना है कि तस्दीक से मुस्तहिक लोग ही ज़कात से मुस्तफीद हो सकेंगे। दूसरी जानिब पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने पार्टनर स्कूल्स में क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्ट लेने का ऐलान कर दिया। पार्टनर स्कूलों में तुलबा का 9 मार्च से क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्ट लिया जाएगा। 10,000 पार्टनर स्कूलों में प्राइमरी, दूसरी, तीसरी और चौथी जमात का QAT लिया जाएगा। पार्टनर स्कूल्स में QAT 13 मार्च तक जारी रहेगा। खराब नताइज देने वाले पार्टनर स्कूल्स के खिलाफ कायदे ज़वाबत के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पैफ ने मातहत स्कूलों को QAT के लिए हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मुल्क की पहली ई-टैक्सी स्कीम का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने तकरीम में पंजाब ई-टैक्सी स्कीम का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने ई-टैक्सी स्कीम में दी जाने वाली गाड़ियों का मुआयना किया, जबकि ई व्हीकल की खसूसियात बारे दरियाफ्त किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने स्कीम ने 5 खुशनसीब मर्द और ख़वातीन में ई-टैक्सी की चाबियाँ तकसीम की। वज़ीर आला मरीम नवाज, नायला फरहान, किरण खुर्शीद, कुर्रतुलैन, आबिद अली और अजमत महमूद को चाबियाँ दी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ई-टैक्सी हासिल करने वाले दीगर अफराद को भी स्टेज पर बुला लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ई-टैक्सी हासिल करने वाले मर्द और ख़वातीन के साथ तस्वीर बनाई। वज़ीर आज़म ने यूथ लैपटॉप स्कीम 2026 के तहत वेटनरी यूनिवर्सिटी में 558 होनहार तलबा में लैपटॉप तकसीम कर दिए गए। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज में वज़ीर आज़म यूथ लैपटॉप स्कीम 2026 की तकरीब हुई। तकरीब की सदारत वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने की। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, डीन, फैकल्टी मेंबरान और तलबा तालिबात ने तकरीब में शिरकत की। राना सिकंदर हयात ने कहा कि नौजवान तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना वक्त की अहम ज़रूरत है। तलबा को स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप स्कीम से आगे बढ़ने के मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। IG पंजाब अब्दुल करीम के ज़ेर सदारत इजलास में अमन अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। IG पंजाब ने हमसाया मुल्क की तरफ से दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के पेश नज़र सूबे की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म दिया है। IG पंजाब अब्दुल करीम ने कहा कि मसाजिद, इमाम बारगाहों, मज़ारात, हसास मकामात और तनसीबात और मार्केटों की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी जाए। बैनुल सूबाई सरहदी चौकियों, मजहबी मकामात, हसास तनसीबात पर तैनात एहलकार इंतहाई अलर्ट होकर ड्यूटी करें। ज़रूरी अफसरान CTD, स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस इदारों की मशावरत से सिक्योरिटी इक़दाम यकीनी बनाएं। सहूलत बाज़ारों, मार्केटों में ख़वातीन की हिफाजत के लिए तैनात लीडी पुलिस एहलकार चौकस रहें। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रीजनल ऑफिस लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से फेडरेशन रहनुमाओं ने ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स में मुजवज़ा तरमीम को यकसर मुस्तरद कर दिया। फेडरेशन चैम्बर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब सदर ज़की एजाज, UBG पंजाब चेयरमैन आमर अता बाजवा, सदर स्मॉल चैम्बर अमजद चौधरी, मंजूर मलिक और मुख्तलिफ चैम्बर्स के ओहदेदारान ने शिरकत की। उन्होंने वाज़ेह किया कि FPCCI का मुतालबा है कि ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स बिल को मौजूदा शक्ल में मंजूर न किया जाए और तमाम स्टेक होल्डर्स से फौरी, जामिया और बामानी मशावरत की जाए। डिस्ट्रिक्ट चैम्बर्स, वीमेन चैम्बर्स और स्मॉल ट्रेडर्स की अलहदा और मौसर नुमाइंदगी हर सूरत बरकरार रखी जाए। हम इस्लाहात के खिलाफ नहीं है, हम शफाफियत के खिलाफ नहीं है, हम बेहतरी के खिलाफ नहीं है, लेकिन क्या हम ऐसी इस्लाहात के खिलाफ जरूर है जो ताकत को चंद बड़े शहरों को तक महदूद कर दें। दही और नईम शहरी
सेमी अर्बन और रूरल मैशियत को नजरअंदाज कर दें, ये बिल मौजूदा शक्ल में कारोबारी इत्तेहाद को कमजोर करेगा। ये एक ऐसी एनोमली उन्होंने क्रिएट कर दी जिसपे बिजनेस कम्युनिटी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, और इसी तहफ़्फ़ुज़ात को लेके हमने स्पीकर साहब से भी और बाकी जो इसकी कानून कमेटी है उसको भी अप्रोच किए। फेडरेशन चैम्बर के ओहदेदारान ने कहा कि मुजव्वज़ा तरमीम बराए ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स 2013 ने पूरे मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ये महज एक इंतजामी तब्दीली नहीं बल्कि एक साख्ती तब्दीली है जो कारोबारी नुमाइंदगी के पूरे निज़ाम को मुतासर कर सकती है। मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से, मेरी रिक्वेस्ट है अस्करी क़यादत से कि कोई ऐसा मैकेनिज्म बना दें कि कोई भी कानून पास करने से पहले जो स्टेक होल्डर है उनसे मुशावरत जरूर की जाए और उसको असेंबली में हाईलाइट भी किया जाए। सबसे मजबूत अदारा जो होता है वो उसका चैम्बर होता है, तो इंशाल्लाह हम ये पास क्या हम असेंबली में पेश ही नहीं होने देंगे, उससे पहले इंशाल्लाह हम इस पे जितनी अपनी आवाज बुलंद कर देंगे कि ये यही खत्म हो जाए। बहुत शुक्रिया जी। मीडिया का कोई फेडरेशन चैम्बर ओहदेदारान ने कहा कि APCCI के तहत 308 ट्रेड बॉडीज मुल्क के सनती, तिजारती और सर्विसेज सेक्टर की नुमाइंदगी कर रही हैं। अगर ये तरमीम मौजूदा शक्ल में मंजूर हो गई तो दर्जनों डिस्ट्रिक्ट चैम्बर मुतासर होंगे। 32 वीमेन चैम्बर और स्मॉल चैम्बर्स की आजादाना शनाख्त खतरे में पड़ जाएगी। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज पर खवातीन मॉडल टाउन में साइंस नुमाइश का इनेकाद किया गया, जहां तालिबात ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों और साइंसी महारतों का भरपूर मुजाहरा किया। तालिबात को अपनी सलाहियतों की नुमाइश का मिला शानदार मौका। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज पर खवातीन मॉडल टाउन में सजा साइंस मेला। असातिज़ा की सरपरस्ती में तालिबात ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मॉडल्स और रिसर्च प्रोजेक्ट्स पेश किए। नुमाइश में डायरेक्टर कॉलेजेस एहसन मुख्तार और प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर शहनाज कौसर ने खुसूसी शिरकत की और साइंसी नुमाइश की अहमियत पर रोशनी डाली। इस वक्त पंजाब के सब कॉलेजेस में हमारी एग्जीबिशंस अरेंज हो रही हैं। इस वक्त हमारा जो एकेडमिक कैलेंडर था उसमें ये जो फेब का मंथ था इसमें हमारी एग्जीबिशंस होनी थी। पर्पस क्या है? पर्पस ये है इसके पीछे ये है कि बच्चों के अंदर जो इनोवेटिव जो उसकी कैपेबिलिटीज़ है उसको सामने लेके जाए। जो हम पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ पढ़ाने के हद तक ना, उसकी एक डेमो हो, वो प्रैक्टिकल शेप में लेके आए। बच्चों के इन सारे मॉडल्स के अंदर बच्चों की जो सलाहियत नज़र आई है और जो मॉडल्स हैं वो खुद बोल रहे हैं बच्चों की सलाहियतों को, और इनको अरेंज करने वाले असातिज़ा की भी मैं यहाँ पे ज़रूर जिक्र करूँगी जिन्होंने दिन रात की मेहनत करके बच्चों को इतने अच्छे मॉडल्स तैयार करवाए, उनको गाइड किया और उनकी रहनुमाई की। तवानाई के मुतबादिल ज़राए और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक प्रोजेक्ट ख़ुसूसी तवज्जो का मरकज़ रहे। बहुत अच्छी एग्जीबिशन रखी है, साइंस एग्जीबिशन, और इससे हमारा और ज़्यादा जज्बा जोश बढ़ता है और हमारे में आता है कि हम और बनाएं और हाई लेवल पर जाएं। सारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया, बहुत अच्छे इवन के बहुत अच्छी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड वीडियोस बहुत अच्छी बेस पे बनाई हुई हैं बच्चों ने। शुरका ने तालिबात की मेहनत और कारकर्दगी की तारीफ की। नुमाइश तालिबात की सलाहियतों का अमली मुजाहिरा साबित हुई। कैमरामैन मुबीन अब्बास के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42। क्रिस्टियन किड्स कैंपस इस्लामा इकबाल टाउन में सालाना तकरीब तकसीम इनामात है। डायरेक्टर मोहम्मद अहमद ने 500 से ज़ायद पोजीशन होल्डर्स तलबा और तलबात को मेडल्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए। क्रिस्टियन किड्स कैंपस इस्लामा इकबाल टाउन की सालाना तकरीब तकसीम इनामात में 500 से ज़ायद पोजीशन होल्डर्स तलबा में मेडल्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। डायरेक्टर क्रिस्टियन किड्स कैंपस मोहम्मद अहमद बोले, हर साल की तरह रवा साल भी तलबा ने एकेडमिक्स के साथ रोबोटिक्स, AI और IT में अच्छे नताइज दिए। हम हर डायरेक्शन में मेहनत करवाते हैं, एकेडमिक्स भी है, रोबोटिक्स है, कंप्यूटर है, स्पोर्ट्स है। तो जितने बच्चे जितनी जगहों के ऊपर अचीवमेंट्स करते हैं, साल के एंड में हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चा 3 to 4 सर्टिफिकेट्स या कप्स लेके जाए, ताकि दूसरे बच्चों को भी हो कि हमने सिर्फ एक डायरेक्शन में एक कप के लिए मेहनत नहीं करनी। वालदैन का कहना था, क्रिस्टियन किड्स का अच्छे नताइज पर तलबा को इनामात से नवाजा जाना ऐसा इकदाम है। बच्चों को जो ये इनामात आज मिले हैं यही इनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर करते हैं। इन्हीं के लिए बच्चे सारा साल बहुत मेहनत करते हैं और इनको लेके वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट ईयर के लिए मोटिवेट होते हैं। पोजीशन होल्डर्स तालिबात का कहना था, इनामात से नवाजे जाने पर खुशी हुई, मुस्तकबिल में भी पोजीशन बरकरार रखने के लिए मजीद मेहनत करेंगी। मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हो रही है और इस तरह से होने चाहिए, इस तरह से इवेंट्स, ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो
ہمارے اسکول میں انعامات دیتے ہیں تو بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ آگے بھی محنت کرنے کی اور کوشش کرتے ہیں اور اسے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بہت خوشی ہوئی ہے۔ ڈائریکٹر محمد احمد نے مختلف کلاسز میں پوزیشن لینے پر عنایہ فیصل، خضر فاطمہ، ایمان سفیان، کاشف حسین، نیاب سلیم، مائرہ ذوالفقار، ہاشم عثمان، عائشہ فہیم میں انعامات تقسیم کیے۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42۔ دوسری جانب انڈونیشین فلم الا شروبن عید الفطر پر سنیماؤں میں ریلیز ہوگی۔